direct and indirect evidence in favor of conjugation mechanism. Conjugation mechanisms जिसमें डायरेक्ट या और इनडायरेक्ट एविडेंस फेवर करता है. Conjugation, the above conjugation based mechanism can be experimentally verified by following explanation. Conjugate based के mechanism के ऊपर हम experimentally verify कर सकते explanation को. It has been observed that second order kinetics can follow SN1 CB mechanism because the equilibrium constant of reaction 2 is obtained very fast and the conjugate base present at the equilibrium is of small, that is K is small size. Since the reaction to involve the dissociation of chlorine anion from the conjugate base, it is slower than 1 and 3 and thus it is rate determining step. तो ये ऑब्जर्व किया है कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म्स फॉलो करता है जहाँ पे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम 2 ऑब्टेन होता है वो बहुत फास्ट रहता है and the conjugate base present at equilibrium is of small. Conjugate base जो है CB present रहता है equilibrium में वो भी छोटा रहता है. That is K is small since the reaction to involve the dissociation of chloroanion. तो chloroanion का dissociation involve रहता है क्योंकि उसमें K जो है छोटा रहता है conjugate base से. तो conjugate base जो है slow रहता है compared to 1 और 3 से. तो ये rate determining step है. R is equal to K in bracket cobalt NH3 for NH2Cl plus from reaction 1. K is equal to cobalt NH3 for NH2Cl plus upon CONH3 for Cl plus HO minus. So CONH3 for NH2Cl plus is equal to K CONH3 for Cl2 plus HO minus. R is equal to K small k capital K CONH3 for Cl2 plus HO minus equal to K dash CONH3 for Cl plus HO minus. Second point, at very high HO minus ion, अगर हाइड्रोक्साइल आयन का concentration अगर ज़्यादा रहेगा, the rate of base hydrolysis tend to be almost independent of HO minus. तो base hydrolysis का rate जो है वो HO minus हाइड्रोक्साइल आयन का concentration के ऊपर independent है. This observation can be explained by SN1 CB mechanism. यह observation जो explain हो सकता है substitution unimolecular substitution reaction conjugate mechanism की वजह से. If the amount HO minus ion added is very large, there would be very little difference in the concentration of HO minus. After adding acid, HO minus can be taken as constant so that the rate of hydrolysis is given above in 1 become. तो जो हाइड्रोक्साइल आयन का अमाउंट जो है काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइल आयन का कॉन्सेंट्रेशन में छोटा सा फ़र्क पड़ेगा जिसमें एसिड मतलब एसिड ऐड करने के बाद HO माइनस हाइड्रोक्साइल आयन जो है उसको कांस्टेंट लेंगे तो ऐसे हाइड्रोलिसिस जो है ऊपर 1 में वो बन जाएगा R is equal to K dash CONH3 for Cl2 plus constant. 3. The ligands such as NO2 minus, NCS minus, N3 minus etc. are as strong nucleophile as hydroxyl, but they do not influence the rate of hydrolysis of amine complex. तो ligand जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन थायोसाइनाइड, ट्राइनाइट्राइड ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जैसा हाइड्रोक्साइल एनायन है लेकिन ये इन्फ्लुएंस नहीं करता है और अमाइन कॉम्प्लेक्स का रेट हाइड्रोलिसिस को इन्फ्लुएंस नहीं करता है हाइड्रोक्साइल आयन. दिस इज एक्सप्लेन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन थायोसाइनाइड, ट्राइनाइट्रोजन are not as strong
हैज़ द हाइड्रोक्सिल आयन। तो इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन थायोसाइनाइड, ट्राइनाइट्रोजन जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे हाइड्रोक्सिल आयन है, एंड हेंस अनेबल टू एक्सट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम द अमाइन ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स का अमाइन ग्रुप से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है टू यील्ड कॉन्जुगेट बेस, ताकि वो कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस कर सके कॉम्प्लेक्स का, ताकि वो कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस कर सके बाय रिएक्शन वन से। सो hydrolysis cannot proceed through SN1 conjugate base mechanism for this ligand। तो इस ligand के लिए यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कॉन्जुगेट बेस जो है इस लिगैंड के लिए हाइड्रोलिसिस आगे नहीं बढ़ सकता। It has also been observed that for the reaction proceeding through SN2 mechanism paths, HO2 minus is better nucleophile than hydroxyl ion। ये ऑब्जर्व किया है रिएक्शन के लिए कि बाय मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म पाथवे के थ्रू कि न्यूक्लियोफाइल जो है कि हाइड्रोजन डाइऑक्साइड जो है अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर टू हाइड्रोक्सिल आयन से। द हाइड्रोजन डाइऑक्सीजन anion can be generated by the action of H2O2 on HO minus। तो HO2 माइनस एनायन जो है फॉर्म हो सकता है जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को रिएक्ट करेंगे HO माइनस के साथ। तो H2O2 को रिएक्ट करेंगे HO माइनस के साथ तो H2O और HO2 माइनस मिलेगा। Therefore, it assumed that the rate of base hydrolysis increased with the addition of H2O2 on SN2 mechanism because H2O2 convert hydrogen dioxide ion as a better nucleophile। तो इसलिए बेस हाइड्रोलिसिस का रेट जो है बढ़ता है जैसे से हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करते हैं SN2 मैकेनिज्म में, क्योंकि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड आयन में जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। However, it is noted down that the rate of base hydrolysis decreases with addition of hydrogen peroxide। तो ये भी ध्यान देने की बात है कि बेस हाइड्रोलिसिस का रेट जो है वो कम होता है जैसे जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड होता है, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड decreases which is necessary for the production of CB conjugate base। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है कम होता है कॉन्जुगेट बेस का प्रोडक्शन के लिए। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम होता है वो ज़रूरी है कॉन्जुगेट बेस के लिए। Experimentally, has been observed that the addition of hydrogen peroxide actually decreases the rate of base hydrolysis of amine complex of cobalt 3, which then strongly favor SN1 conjugate base mechanism। ये एक्सपेरिमेंट किया है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करेंगे तो बेस हाइड्रोलिसिस अमीन कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट 3 का अमीन कॉम्प्लेक्स का बेस हाइड्रोलिसिस का जो रेट जो रहता है स्पीड जो रहता है वो कम होता है, जो स्ट्रांगली फेवर करता है SN1 कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म को। द आइसोटोपिक exchange studies on a base hydrolysis using 18OL support the SN1CB mechanism for base hydrolysis of carbon cobalt 3 amine complex। तो आइसोटोप एक्सचेंज स्टडीज जो बेस हाइड्रोलिसिस है जहाँ पे 18 हाइड्रोक्साइल जो है यूज़ होता है सपोर्ट करता है SN1CB मैकेनिज्म को कोबाल्ट 3 का बेस हाइड्रोलिसिस अमीन कॉम्प्लेक्स से। It has been evident from the above explanation that the rate of base hydrolysis is million fold faster than acid hydrolysis। तो इससे एविडेंट होता है कि बेस हाइड्रोलिसिस का रेट जो है ज़्यादा फास्टर रहता है एसिड हाइड्रोलिसिस से जो OH माइनस आयन प्रोवाइड करता है एज अ बेस। The reason of faster rate for base hydrolysis over acid hydrolysis is proton abstraction from coordinated
ammonia in the reactant complex which form a conjugate base CB. तो रियल रीज़न क्या है कि बेस हाइड्रोलिसिस का जो रेट जो है ऐसे हाइड्रोलिसिस के ऊपर वो फास्ट इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन होता है कोऑर्डिनेटर अमोनिया से रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स में जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करता है एंड CONH3 Cl plus act as a driving force for chloro-anion dissociation. So CONH3 Cl plus जो है ड्राइविंग फोर्स का काम करता है क्लोरो आयन डिसोसिएशन के लिए.